So, a very good evening to one and all. Welcome back to yet another super informative biology live session on the beautiful and amazing platform of Avanti. So, today we are going to learn about transport of oxygen and carbon dioxide. How exactly they are transported in our body, right? How blood is helping in the transportation, because we know that blood helps in the transportation of nutrients, of oxygen, carbon dioxide, right? So, how does it happen? That we are going to see in today's class. This is lecture number 5 on the topic breathing and exchange of gases. It's gonna be so interesting and so easy, right? So, presenting you the first slide. Tell me, what does it talk about? What is it talking about? I had given you this as homework also. है ना? Whenever exchange of gases take place, how many layers they have to cross? There are how many layers which they need to cross? Shrishti, think again. Yes, Numan. How many layers? There are 3 layers. Okay. This is one layer. This is another layer. And this is another layer. There are 3 layers. Okay. What are they? One is this squamous epithelium of alveoli. Squamous, yes, Chiranjeev. One is squamous epithelium of alveoli. Then below that you will get basement substance, right, released by them. So basement membrane or basement substance. And below that you have the epithelial tissue of blood vessel. And the epithelial tissue for blood vessel, you can call it as endothelium. That's right. You can call it as endothelium. Endothelium of blood vessels. Endothelium of blood vessel. Okay? Yes? Now, this is what is given in NCERT. है ना? This is the epithelial cell of alveoli. Between you have the basement substance, and this is the epithelial cell of blood vessel, which is called as endothelium. Okay, this is how exchange of gases take place. Got it? Who will tell me, if you have gone through NCERT, solubility of oxygen is more, or solubility of carbon dioxide is more? Which one has more solubility? O2 or carbon dioxide? If you look at it, you will get it. CO2 has, yes, Anushka, Chiranjeev, you are right. Solubility of CO2 is more. How many times you know? 20 to 25 times. 20 to 25 times the solubility of CO2 is more than oxygen. Now tell me, what is the thickness of this membrane? How much thick this membrane is by which the exchange of gas is taking place? How much thick it is? Think of it. Think. It is less than 1 millimeter. It is less than 1 millimeter. In some of the book, you will see it is 0.2 mm. It is 0.2 mm. But fine, it is not in NCERT. So you should remember this. This is there in NCERT. It is less than 1 mm. The thickness of the diffusion membrane, this is called as diffusion membrane, because here only diffusion of gases that is taking place. So the thickness of the diffusion membrane is very thin. It's less than 1 millimeter. Less than 1 millimeter. Now this is very thick letters, right? So I have written it on purpose.
so that I ask you and you tell me what they are. Can you make out what is this written over here? We are talking about now transport of gases. We are now talking about our today's topic, transport of gases, how oxygen is transported and how CO2 is transported, right? How oxygen is transported? सोचा है कभी? ब्लड के थ्रू ही जाएगा ना? कैसे जाएगा? 97% ऑफ ऑक्सीजन, ये आपका बहुत बार क्वेश्चन आया है नीट में, बहुत बार इससे क्वेश्चंस आए हैं नीट में, इस परसेंटेज वाले वैल्यू से, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट कि 97% ऑक्सीजन आरबीसी की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होगा, 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिसॉल्व होके जाएगा। प्लाज्मा ब्लड का ही पार्ट है, ब्लड में आपको प्लाज्मा भी मिलता है, ब्लड में आपको आरबीसी भी मिलता है, समझे? प्लाज्मा फ्लूइड वाला पार्ट है और आरबीसी सेल है। तो 97% आरबीसी के साथ एंड 3% फ्लूइड के साथ प्लाज्मा। अगर तुम CO2 की बात करोगे तो CO2 20 to 25% रिड्यूस हो चुका है। पहले यहाँ 97% आरबीसी के साथ था फॉर ऑक्सीजन, लेकिन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम, 20 to 25% आरबीसी के साथ जाएगा, 70% बाइकार्बोनेट के जैसा जाएगा। 70% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विल गेट ट्रांसपोर्टेड बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, HCO3 माइनस इसके फॉर्म में जाएगा, HCO3 माइनस। गॉट इट? रेस्ट जो बच गया कुछ 7% वो प्लाज्मा की हेल्प से जाएगा। वो कैसे जाएगा? प्लाज्मा की हेल्प से जाएगा। ये दिमाग में रट लो, ठीक है? CO2 आरबीसी में हीमोग्लोबिन से बाइंड होके जाएगा नुमान। हाँ बिल्कुल सही, हीमोग्लोबिन से बाइंड होके जाएगा। हीमोग्लोबिन से CO2 बाइंड होता है और आप उसको बोलते हो ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हो उसको? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। आरबीसी में कौन से स्ट्रक्चर से बाइंड होगा? हीमोग्लोबिन से बाइंड होगा, करेक्ट। O2 भी हीमोग्लोबिन पे जाएगा ना, देखो ना, ये जो मैंने आरबीसी लिखा है यहाँ पे, आरबीसी के कौन से स्ट्रक्चर से जाएगा? हीमोग्लोबिन से ही जाएगा। हीमोग्लोबिन ही तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो आरबीसी में पाया जाता है। तो अगर मैंने आरबीसी बोला है तो एक्चुअली मैं हीमोग्लोबिन बोल रही हूँ। अगर मैंने आरबीसी बोला है तो एक्चुअली मैं क्या बोल रही हूँ? हीमोग्लोबिन, ठीक है? तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जाएगा 97% एंड कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जाएगा 20 to 25%, ठीक है? मैं अभी सिखाऊंगी, आप बस ये डेटा अभी ध्यान में रखो ना। आई विल टीच यू उसका पूरा कैसे कैसे हो जाएगा, मैं समझाऊंगी उसको। अभी डेटा याद रखो क्योंकि यही पूछा जाएगा एग्जाम में, यही एग्जाम में पूछा जाएगा। ये कैसे होगा वो तो मैं समझाऊंगी, लेकिन एग्जाम में आपका यही पूछा जाएगा, ठीक है? अब आ जाओ इसमें। अभी मैंने बोला ना, हम पहला केस देखते हैं, मतलब पहले हम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देखेंगे। हम पहले क्या देख रहे हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। क्या देख रहे हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। पहला हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन 97% किसके साथ? आरबीसी के साथ, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन के साथ याद है कुछ? पहले दिन ही मैंने पढ़ाया था कि हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकता है? बताओ। 4 से बाइंड करेगा, है ना? बिल्कुल सही नुमान। पहले ही दिन मैंने एक ग्राफ बताया था, बताओ। वो ग्राफ का नाम था बोर कर्व, राइट? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, राइट? तो बताओ ये कर्व कैसा था?
शेप कैसा था इसका? एस का शेप था, राइट चिरंजीव? बिल्कुल सही, हाँ विराल, दैट वाज सिग्मोइड। तो यही है आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कैसे कैसे होगा। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन, बहुत सारे फैक्टर से उस पर डिपेंड करता है कि कब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करेगा। कब? जो आरबीसी पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है वो कब ऑक्सीजन से बाइंड होगा। तो ये सारे फैक्टर्स है। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ये चार चीजें हैं जो फैक्टर है जो डिटरमाइन करेगा कि हीमोग्लोबिन किससे बाइंड होगा, ऑक्सीजन से होगा या कार्बन डाइऑक्साइड से। कुछ समझ रहा है? देखो, इसी हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बाइंड करना है, इसी हीमोग्लोबिन को कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करना है, तो कंपटीशन तो होगा ना कि कब किससे कौन बाइंड करेगा। तो ऑक्सीजन बाइंड करने के लिए ये सब फैक्टर्स है। ठीक है, तो देखो क्या फैक्टर्स होने चाहिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, सोचो ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। अगर मुझे हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बाइंड कराना है तो मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा देना चाहिए, कम देना चाहिए? ज्यादा देना चाहिए। जितना ऑक्सीजन दोगे उतना हीमोग्लोबिन से वो बाइंड होगा। अगर ऑक्सीजन दोगे ही नहीं, अगर ऑक्सीजन है ही नहीं, तो हीमोग्लोबिन कहाँ से लाएगा ऑक्सीजन, कैसे बाइंड करेगा? मेरे पास 100 ऑक्सीजन है, 200 कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड इसको फेंक देगा बाहर, भागो भागो यहाँ से, मैं जा रहा हूँ हीमोग्लोबिन से बाइंड करने। समझ रहे हो कुछ? हम्म। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। अब बोलो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होना चाहिए? उसको ज्यादा रखना चाहिए, कम रखना चाहिए, अगर आपको हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बाइंड करना है तो? कम, राइट, बिल्कुल सही। हाइड्रोजन, जितना हाइड्रोजन रहेगा उतना एसिडिटी बढ़ेगा, हमें एसिडिटी को कम करना है। एक बात सोचो ना, जितना कार्बन डाइऑक्साइड है अगर वो वाटर से कंबाइन करेगा तो वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाएगा? H2CO3, मतलब एसिड, एसिडिक एनवायरनमेंट। तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड उतना एसिड। तो हम CO2 को कम रखना चाहते हैं, मतलब एसिड को भी कम रखेंगे कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा क्या होगा? मान लो मेरे पास H2CO3 है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा वो उतना, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा वो उतना ब्रेक होगा H प्लस वाले आयन में, जितना H प्लस में होगा टूटेगा H प्लस HCO3 माइनस। अगर H2CO3 को मैं तोड़ू तो H प्लस HCO3 माइनस बन सकता है, या H2O और CO2 फिर से बन सकता है। तो अगर मेरे पास ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ये डिसोसिएट कर जाएगा। अगर डिसोसिएट करेगा तो हमारा CO2 ज्यादा बढ़ने लगेगा या H प्लस ज्यादा बढ़ने लगेगा। हम ये नहीं चाहते, ना ही हम एसिडिक एनवायरनमेंट चाहते हैं, ना ही हम ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड चाहते हैं। तो टेम्परेचर को क्या रखोगे? कम रखोगे। ये सारी फेवरेबल कंडीशन है हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बाइंड कराने के लिए, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बाइंड कराने के लिए। ठीक है, करेगा नुमान, करेगा, बिल्कुल करेगा, है ना, करेगा, वो सीखेंगे। अभी हम बस ये सीख रहे हैं अगर आपको ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से बाइंड कराना है क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। इसको ज्यादा होना चाहिए, बाकी सबको कम होना चाहिए, तभी जाके आपका हीमोग्लोबिन सक्सेसफुली ऑक्सीजन से बाइंड करेगा। और कितना करेगा? एक करेगा 4 के साथ, एक करेगा कितनों के साथ? 4। 1 हीमोग्लोबिन विल बाइंड विथ हाउ मेनी ऑक्सीजन? 4, है ना? यस आकांक्षा, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन विल बाइंड विथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इसको क्या बोलते हो? अगर ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन बाइंड कर जाता है तो क्या बोलते हो? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी
हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यहां मैं नहीं लिखूंगी इसको, एक और पेज में लिखती हूँ। क्या बोलोगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हमने एक कर्व देखा था जो बोर ने दिया था कि एक्स एक्सिस पे रख दो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड वाई एक्सिस पे रख दो परसेंटेज सैचुरेशन। सब पढ़ाया है मैंने ऑलरेडी, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो क्या पढ़ा था हमने? इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, एस। मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रही थी बताओ अब? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर क्या है उसी समय? हाँ, 96 mmHg, राइट। तो इस पे आपको मैक्सिमम परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन मिलेगा, मतलब हीमोग्लोबिन आपका 4 ऑक्सीजन से बाइंड हो चुका है, अब उसमें जगह है ही नहीं बाइंड करने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया जो हमने पढ़ा था, आपको रिवाइज भी हो जाएगा। अगर 50% सैचुरेशन होता है, 50% सैचुरेशन होता है, उस वैल्यू को क्या बोलोगे? उस पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 को क्या बोलोगे? उस पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 को क्या बोलोगे? P50, है ना? P50, बोर 50 वैल्यू, P50 बोर 50 वैल्यू, ये भी मैंने पढ़ाया था आपको, है ना? चलो अब ये बताओ, अगर कोई बच्चा है मदर्स वूम में, इफ देर इज अ बेबी इन द मदर्स वूम, देर इज अ बेबी इन मदर्स वूम, तो उसका भी तो हीमोग्लोबिन होगा ना, अंदर बॉडी में ब्लड है, बच्चे का भी ब्लड है, तो उसको फीटस बोलते हैं हम, राइट। अगर फीटस हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का कर्व देखोगे तो वो आपका, वो भी कैसा होगा? सिग्मोइड होगा बच्चा पार्टी, वो भी सिग्मोइड होगा। बोर वाला कर्व भी सिग्मोइड था, मतलब ये एडल्ट वाली बात कर रही हूं मैं, एडल्ट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कर्व दोनों ही सिग्मोइड है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि फीटस की जो हीमोग्लोबिन होती है उनकी एफिनिटी ऑक्सीजन से बाइंड करने की ज्यादा होती है या कम? कोई आइडिया है? नहीं है तो मैं बताऊंगी, डोंट वरी, बताओ। फीटस की जो हीमोग्लोबिन होती है उसको ऑक्सीजन से बाइंड करने की कैपेबिलिटी ज्यादा, एफिनिटी ज्यादा होती है या कम होती है? ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा। समझे? तो अगर ज्यादा होती है, मान लो ये एडल्ट का है, ये एडल्ट का सिग्मॉइड कर्व है एडल्ट हीमोग्लोबिन के लिए, तो फीटस का जो हीमोग्लोबिन है यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिल गया, ये आपका मैक्सिमम है, मान लो कुछ 96 पे आपको मैक्सिमम मिला था। मुझे ये बताओ कि अगर उसकी एफिनिटी ज्यादा है, अगर उसकी एफिनिटी ज्यादा है तो उसका 100% सैचुरेशन इस पार्शियल प्रेशर से कम पे हो जाएगा कि नहीं? सोचो, उसकी एफिनिटी ज्यादा है ना, तो इससे कम प्रेशर पे भी वो 4 ऑक्सीजन से बाइंड कर लेगा, यस और नो? सोचो, अगर चाहत ज्यादा ऑक्सीजन के लिए, तो अगर प्रेशर कम है फिर भी वो आराम से बाइंड कर जाएगा, यस? यस। तो बताओ मेरा जो ग्राफ होगा वो ऐसा आएगा, राइट साइड में आएगा या लेफ्ट साइड में आएगा? सोचो, राइट साइड में आएगा या लेफ्ट साइड में आएगा? मैंने आपको क्या बताया अभी कि इससे कम पार्शियल प्रेशर में वो 100% सैचुरेट हो जाएगा, इससे कम में। तो मेरा जो ग्राफ है वो ऐसे जाएगा या मेरा ग्राफ ऐसे आएगा, ऊपर या नीचे, लेफ्ट या राइट? ये लेफ्ट है, ये राइट है। प्रियांशी नुमान ने समझ लिया। अविराल, चलो अविराल बोलते हैं राइट होगा मैम, ठीक है, जो अविराल बोल रहे हैं वो करेंगे हम। चलो बनाते हैं।
ठीक है, ऐसा कुछ बन गया। इसका मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे आया ना अविरल, मैक्सिमम पॉइंट यहाँ आ गया सैचुरेशन, है कि नहीं? चलो देखो कितना पार्शियल प्रेशर है यहाँ पे, देखो तो जरा एक बार, क्या ये 96 से कम दिख रहा है आपको अविराल? ये 96 से ज्यादा होगा ना अगर आप इस एक्सिस पे जाओगे तो, 96 से ऑफ कोर्स ज्यादा होगा। चलो एक ग्राफ मैं यहाँ बना देती हूँ, ध्यान से देखना थोड़ा। यहाँ पे मैक्सिमम आ चुका है आपका पॉइंट, चलो ड्रॉ करो तो इसको। यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट आ चुका है आपका। तो ये जो पार्शियल प्रेशर है वो कम है 96 से या ज्यादा है? सोच के बोलो। तो ग्राफ किधर जाएगी? लेफ्ट जाएगी, समझे? तो फीटस का जो हीमोग्लोबिन का कर्व होगा ऑक्सीजन के साथ, वो क्या होगा? ये मैं इरेज कर दे रही हूँ हाँ, ताकि किसी को कोई डाउट नहीं हो बाद में। तो कैसे होगा, डिफिकल्ट है करना उसको। हाँ मैं डायरेक्ट फ्रेश बना देती हूँ यहाँ पे, है ना? somewhere here you got the peak 100%, which is less than 96, 100% saturation, and this is your fetal, मतलब बच्चे का fetus hemoglobin, fetal hemoglobin curve। तो ग्राफ लेफ्ट जाएगा, रीजन क्या है? क्योंकि फीटस का हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी ज्यादा होता है। उसके रीजन है, मैं बता भी सकती हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? देयर इज अ रीजन कि क्यों 30%, 30% एफिनिटी ज्यादा होती है। एडल्ट का जो हीमोग्लोबिन है ना, एडल्ट का जो हीमोग्लोबिन है उससे फीटस का जो हीमोग्लोबिन है उसके पास 30% और ज्यादा एफिनिटी होता है ऑक्सीजन के लिए, ठीक है? अब आ जाओ इसमें मायोग्लोबिन। ये मायोग्लोबिन क्या है पता है? मायोग्लोबिन मसल पिगमेंट है ना, जो मसल सेल्स में ऑक्सीजन को कैरी करेगा। मायोग्लोबिन मसल पिगमेंट को बोलते हैं मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कैरिंग पिगमेंट, ठीक है? मसल सेल्स में होंगे जो ऑक्सीजन को कैरी करेंगे। इन मसल सेल्स जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं वो मायोग्लोबिन है। मायो का मतलब मसल्स, ठीक है? इनकी भी एफिनिटी ज्यादा होती है, इनकी भी एफिनिटी, इनकी भी एफिनिटी इससे ज्यादा होती है, इनकी भी एफिनिटी ऑक्सीजन के प्रति ज्यादा होती है। लेकिन इसका कर्व कैसा आता है पता है? हाउ डज द कर्व लुक लाइक? द कर्व लुक्स लाइक अ हाइपरबोला। अरे, द कर्व लुक्स लाइक अ हाइपरबोला। अब बोलोगे मैम इसका हाइपरबोला क्यों आता है, इसका सिग्मॉइड क्यों नहीं आता है? तो मैं बताती हूँ अभी रीजन। रीजन जानना है तो बोलो, अदरवाइज छोड़ देती हूँ। जानना है रीजन कि इसका हाइपरबोला क्यों आ रहा है? यस, तो हाइपरबोला इसलिए आ रहा है, रिमेम्बर मैंने जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बताया था तब मैंने बोला था आपको कि वो एक कोऑपरेटिव प्रोसेस है, धीरे धीरे एफिनिटी बढ़ती है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन से बाइंड होता है, लेकिन मायोग्लोबिन में ऐसा केस नहीं है। मायोग्लोबिन एक ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, इसलिए आपको इसका ग्राफ एस नहीं मिलता है, इसका ग्राफ हाइपरबोला मिलेगा। हाइपरबोला ऐसा नहीं मिलेगा, ओके? मतलब ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में एक ऑक्सीजन गया तो एफिनिटी बढ़ी, दूसरा गया तो एफिनिटी बढ़ी। देखो स्लो है ना यहाँ पे, तभी तो एस मिला। पहले स्लो इंक्रीज होता है, इसमें क्या हुआ? स्टार्टिंग से ही अपना आराम से रिजल्ट आ गया। इसमें कुछ ऐसा स्लो मेथड नहीं था, एफिनिटी एंड ऑल स्लो नहीं था, फास्ट एफिनिटी था। समझना क्या है? हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन से बाइंड करता है, मायोग्लोबिन सिर्फ 1 से बाइंड करता, इसीलिए इसका ग्राफ हाइपरबोला आता, ठीक है? हाँ नुमान, दैट्स राइट, ठीक है? गॉट इट? तो ये है आपका 3 कर्व। अगर क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे तो ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। 32 इयर्स क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो,
है ना, ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। ये भी गारंटी है कि इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, जो बताया है बस उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा, इससे कम मिल सकता है बट इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ओके, तो ये आपका ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस से। ओके, आगे बढ़े। सो दैट इज फॉर ऑक्सीजन, है ना, ये किसके लिए हो गया, ऑक्सीजन के लिए हो गया। एक और चीज मुझे हाँ ये बताना था मुझे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो प्यूरिफाई होकर लंग्स से हार्ट में गया और हार्ट से टिश्यू की तरफ गया, तो 100 ml ऑफ ब्लड कितना ml ऑफ ऑक्सीजन देता है टिश्यू को? 100 ml ऑफ ब्लड, 100 ml ऑफ ब्लड कितने ml ऑफ ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेगा टिश्यू को? किसी को पता है? एनसीईआरटी का डेटा है ये, एनसीईआरटी का डेटा है नुमान। 20 ml, याद रखना, इस पे भी क्वेश्चन आया है। हमारा एनसीईआरटी इतना कुछ बताता है हमें कि हम उसको ही मिस कर जाते हैं, है ना, इसको चेक कर लेना एक बार, ठीक है। हाँ 5 ml, 5 ml, राइट, ठीक है ठीक है ठीक है, समझी समझी। एनसीईआरटी चेक करो फिर से, 5 ml दिख रहा है क्या? बिल्कुल 5 ml होगा, बिल्कुल ये 5 ml होगा, सॉरी, है ना। ऑल ऑफ यू कैन ऑल्सो चेक, it will be 5 ml of oxygen. Every 100 ml of blood, oxygenated blood, will carry 5 ml of oxygen, will give 5 ml of oxygen to tissue. टिश्यू को कितना देगा? 5 ml of oxygen, 5 ml of oxygen, ठीक है, गॉट इट। अब आ जाओ इसमें, अगर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है, ये एनसीईआरटी में शायद नहीं है, दिस इज नॉट इन एनसीईआरटी, बट ये पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। नहीं प्रियांशी, 4 आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लिखा है, एक बार फिर से चेक करो आप। ऑक्सीजन के लिए 5 ml है एंड कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 4 ml है, एक बार फिर से चेक करो एनसीईआरटी, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, हाँ अविराल, पूरा परफेक्ट नहीं होता है। 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कितने ml ऑफ ऑक्सीजन से बाइंड करता है? 1 gram of hemoglobin can bind with how much ml of O2? 1.34, ये एग्जाम में आया हुआ है, ये डेटा है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, 1.34 ml of O2, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। ऑल राइट, सो दैट इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में? Any doubt is there? Click on yes. If there is any doubt, click on yes. Otherwise, click on no so that हम कार्बन डाइऑक्साइड सीख सके, ऐड होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का 20 to 25% कैसे जाएगा? हीमोग्लोबिन के हेल्प से जाएगा। जब वो बाइंड करेगा, बनाएगा कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। नुमान समझ आया? कहाँ बाइंड हो रहा है वो? अमाइनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन में, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, इसलिए इसका नाम है कार्ब, आपका कार्बन डाइऑक्साइड से नाम आ गया, ठीक है, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। 70% जाता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, SCO3- के फॉर्म में, ठीक है। जो जो एग्जाम में आने वाला है पहले ये देख लो, उसके बाद मैं पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगी। मैं एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आएगा आपको कि क्या फास्टेस्ट एंजाइम है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। व्हाट इज द फास्टेस्ट एंजाइम? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। क्यों है भाई? कुछ तो करता होगा मजेदार। क्या करता है ये ऐसा कुछ करता है, ये काम करता है वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ने का और तोड़ने का, बनाता है H2CO3, ठीक है, समझे?
तो H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड H2CO3, और इसको उल्टा भी यही करेगा, H2CO3 को वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वाला जो प्रोसेस है, इसको करने में हेल्प करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज पता है, जब ये एंजाइम यूज नहीं होता है, 1 घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है सिर्फ 20 मॉलिक्यूल्स बनाने में। इन दोनों को कंबाइन करके ये बनाने के लिए 1 घंटा लगता है। जब इसको यूज करते हो ना, 1 सेकेंड लगता है, 1 सेकेंड। और 1 सेकेंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बन सकते हैं। 1 सेकेंड में 6 लाख, समझ रहे हो डिफरेंस? कहाँ 1 घंटा में रोता हुआ 20 मॉलिक्यूल बनाया, और कहाँ 1 सेकेंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बना। किसकी कृपा थी ये? कार्बोनिक एनहाइड्रेज की। एंड दिस इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एज द फास्टेस्ट एंजाइम ऑफ द वर्ल्ड। पूरे ह्यूमन बॉडी का सबसे फास्टेस्ट एंजाइम है ये। ठीक है, तो कितनी बार इस रिएक्शन को वो बढ़ाता है? 10 मिलियन टाइम्स। कितनी बार बढ़ाता है? 10 मिलियन टाइम्स। दिमाग में फिक्स कर लो ये सारी चीजें, यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, 10 मिलियन टाइम्स। अब आ जाओ सेम चीज जो ऑक्सीजन के लिए पढ़ा था, कि 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड किसको देगा? एल्वियोलाई को देगा ना, हमें इसको बाहर करना है, राइट? तो ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, एल्वियोलाई को देगा। 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितने ml CO2 को देगा? 4 ml, है ना, 4 ml ऑफ CO2। ये सारी इंफॉर्मेशन दिमाग में फिक्स करनी है, क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं। ठीक है, समझे? अगर यहां तक समझ गए, यहां तक समझ गए, तो अब जो समझाने वाली हूं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जो भी थोड़ा थोड़ा डाउट होगा सब क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनो बस। मैं यहां बनाती हूं आपका टिश्यू। ठीक है, यहाँ पे है आपका टिश्यू। रेड कलर यूज नहीं करूंगी, बच्चे बोलते दिखता नहीं अच्छे से, राइट? तो येलो यूज करती हूँ। चलो, टिश्यू है ये। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, टिश्यू क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? जल्दी बताओ, वेट नहीं करना मुझे अब, जल्दी बताओ। CO2, बिल्कुल सही, CO2 रिलीज करेगा। इसके बाजू में मैं ब्लड वेसल बना देती हूँ। हाँ, ब्लड वेसल को यहाँ बना देती हूँ। इतना मोटा नहीं बनाऊंगी, पतला सा बना देती हूँ। या हाँ, ऐसा कुछ बना देती हूँ, ब्लड वेसल। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, क्या ये ब्लड वेसल टिश्यू के अंदर घुसा होगा? क्या ये ब्लड वेसल टिश्यू के अंदर होगा? यस और नो, जल्दी जल्दी बताओ। नहीं ना, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कभी भी ब्लड वेसल किसी भी टिश्यू सेल के अंदर नहीं जाता, उसके आसपास, उसके चारों तरफ रहेगा, कभी उसके अंदर नहीं जाएगा। मतलब जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें हैं वो ये फ्लूइड में आएगा पहले, दोनों ब्लड और टिश्यू या सेल के बीच में फ्लूइड में आएगा। कुछ समझ रहे हो? फ्लूइड में आएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब यहां से CO2 कहाँ जाएगा? याद करो कुछ, CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसा है? 20 to 25% कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन एंड 70% बाइकार्बोनेट। देखना है कैसे होगा ये, देखो। आरबीसी के पास, आरबीसी कहाँ है बचाओ, बताओ। क्या आरबीसी यहाँ मिलेगा आपको, या आरबीसी ब्लड वेसल में मिलेगा? कहाँ मिलेगा बताओ? आरबीसी कहाँ मिलेगा, जल्दी बताने का। क्या वो ब्लड में मिलेगा? नहीं मिले, ब्लड में मिलेगा बिल्कुल। तो चलो आरबीसी बना दो यहाँ पे, और क्या।
यहाँ बना देती हूँ आरबीसी। समझ आया? आरबीसी से मतलब नहीं, किससे मतलब है? हीमोग्लोबिन से मतलब है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा। तो इसको ऐसा करने के लिए ऐसा करने के लिए इसको अंदर जाना पड़ेगा पहले। तो चलो अंदर चलते हैं। गया अंदर। जैसे ही अंदर जाएगा, क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। नहीं रोहित, आरबीसी का शेप होता है बाइकॉनकेव। ठीक है, ये आरबीसी का शेप है बाइकॉनकेव। ठीक है। जैसे ही बाइंड करेगा, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बन गया। अब तो मस्त मस्त ये मूव कर रहा है। मस्त ये मूव कर रहा है, जा रहा है। कार्ब अमाइनो अमाइनो हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन। क्या है ये? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन। ये आपका क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन। समझ आ रहा है ना? यहां तक बात समझ आई? कंबाइन हो गया। बट ये कितना परसेंट था? 20 to 25%। ये कितना परसेंट था? 20 to 25%। ये बस 20 to 25% है। समझे? केस वन है ये। केस वन। अब मैं आपको केस टू दिखा रही हूँ, देखो। मैं बड़ा सा आरबीसी बना रही हूँ। बड़ा सा आरबीसी बनाती हूँ। केस टू में क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड फिर से कहाँ गया है? अंदर गया है। पहले केस में वो हीमोग्लोबिन से बाइंड हो चुका है। पहले केस में वो हीमोग्लोबिन से बाइंड हो चुका है, ध्यान दो मेरी बात को। 20 से 25%। रेस्ट क्या होने वाला है? 70% जाएगा बाइकार्बोनेट। बाकी तो डिजोल्व स्टेट में जाएगा, उसका छोड़ दो। बाकी 7% डिजोल्व स्टेट था, राइट? वो तो डिजोल्व होके चला जाता है। ये देखो 70%। केस टू। केस टू देख रहे हैं हम। केस टू देख रहे हैं हम। कार्बन डाइऑक्साइड। अब अब कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करने वाला है पानी के साथ। कौन सा एंजाइम? अभी अभी बताया, दुनिया का फास्टेस्ट एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। इसके प्रेजेंस में ये बन जाएगा H2CO3। मैं ये समझाने के लिए बस बता रही हूँ, ठीक है? गॉट इट? H2CO3। अब ये H2CO3 ब्रेक हो जाएगा H प्लस प्लस HCO3 माइनस में। H प्लस एंड HCO3 माइनस। समझ आया? क्या मिल गया बाइकार्बोनेट? क्या मिला आपको बाइकार्बोनेट? सोचो और बताओ। ये आपका ब्लड वेसल। ये आपका ब्लड वेसल। क्या मिल गया आपको? बाइकार्बोनेट मिल गया ना? यस। अब ये नेगेटिव चार्ज है। बाइकार्बोनेट इज नेगेटिव चार्ज। इसके बाद समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें बाइकार्बोनेट मिल चुका है। हमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, हमें कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन मिल चुका है। हमें कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन मिल चुका है एंड हमें बाइकार्बोनेट भी मिल चुका है। अब इसके बाद क्या होगा? ये बाइकार्बोनेट ये बाइकार्बोनेट बाहर आएगा। ये बाइकार्बोनेट बाहर आएगा। HCO3 माइनस बाहर मतलब आरबीसी के बाहर आएगा। अभी भी ये ब्लड वेसल में ही है। ब्लड वेसल में ही है, लेकिन आरबीसी सेल से बाहर आ गया, प्लाज्मा में आ गया, फ्लूइड में आ गया। इस फ्लूइड को प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है? फ्लूइड को प्लाज्मा बोलते हैं। तो HCO3 बाहर आ गया, लेकिन नेगेटिव चार्ज बाहर आया। नेगेटिव चार्ज बाहर आ गया। इससे क्या होगा? सेल बोलेगा मैं तुम्हें दे रहा हूं, मुझे चाहिए। गिव एंड टेक। मैं नेगेटिव दे रहा हूं, मैं अनबैलेंस हो जाऊंगा, मेरे को चाहिए। तो क्या होगा? बोलेगा ठीक है ठीक है, तू नेगेटिव दे, मैं तेरे को नेगेटिव देता हूं। तो ये देने वाला है इसको क्या? क्लोराइड आयन।
ध्यान से सुनो मेरी बात को। SCO3 माइनस कहाँ गया? प्लाज्मा में गया, और Cl माइनस उसके बदले में आ गया, बदला, एक्सचेंज ऑफर, Cl माइनस अंदर आ गया। एंड माय डियर चिल्ड्रन, ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इसको बोला जाता है हैमबर्गर इफेक्ट। क्या बोलते हो इसको? हैमबर्गर इफेक्ट। हैमबर्गर ने डिस्कवर किया था। क्लोराइड अंदर आ रहा है, क्लोराइड अंदर शिफ्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव क्लोराइड शिफ्ट। पॉजिटिव क्लोराइड शिफ्ट, इसका एक और नाम है हैमबर्गर इफेक्ट। क्या नाम है? हैमबर्गर इफेक्ट। हैमबर्गर इफेक्ट। समझ आया कुछ? थोड़ा सा मैंने आगे बढ़ाया है स्टेप को। SCO3 माइनस बाहर गया, उस नेगेटिव चार्ज को कॉम्पनसेट करने के लिए, हाँ हाँ रोहित, उस नेगेटिव चार्ज को कॉम्पनसेट करने के लिए क्लोराइड अंदर गया। इसको हैमबर्गर ने डिस्कवर किया, हैमबर्गर इफेक्ट। क्लोराइड अंदर आई, पॉजिटिव क्लोराइड शिफ्ट। समझे? यहां तक समझे? अब ये नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव है ना, हमेशा पॉजिटिव की खोज में लगा रहता है। तो SCO3 माइनस बाहर नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव को ढूंढेगा। मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मेरे को पॉजिटिव चाहिए। तो क्या बोलते? ठीक है ठीक है, तुझे पॉजिटिव देता हूँ। प्लाज्मा बोलेगा तुझे पॉजिटिव देता हूँ, तो पॉजिटिव में क्या आ जाएगा? K प्लस पॉजिटिव, बहुत सारे आयंस होते हैं ना प्लाज्मा में, K प्लस होगा, Na प्लस होगा, राइट? तो अपना मस्त Na प्लस SCO3 माइनस या K प्लस SCO3 माइनस मस्त अब मूव कर रहा है ब्लड में। समझे? यही आपका बाइकार्बोनेट है जो ब्लड में मूव कर रहा है। समझ आया? ये कहाँ पे हुआ है? ये टिश्यू वाले साइड पे हुआ। ये चीज कहाँ पे हुआ? टिश्यू वाले साइड पे हुआ, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड हुआ एंड वाटर से बाइंड करके बाइकार्बोनेट बनाया, और बाइकार्बोनेट बाहर आ चुका है ब्लड में, प्लाज्मा में। समझे? सोचते होगे कि अंदर जाके फिर बाहर आने का क्या मतलब है? नहीं सोचे कभी? इसको हमने पहले अंदर भेजा, ये रिएक्ट करवाया, फिर बाहर भेजा। क्यों? एक रीजन था, ये एंजाइम। इस एंजाइम की वजह से इसको अंदर आना पड़ा, क्योंकि ये बहुत फास्ट रिएक्शन करवाएगा। समझे? क्योंकि आना तो प्लाज्मा में था इसको, तो प्लाज्मा में ही कर लेता ये सारी चीजें। नहीं नहीं नहीं, नहीं करेगा, आएगा इसके पास, क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेज है वहां पे। समझे? तो ये आपका टिश्यू की कहानी। हमने CO2 को बाइंड करा दिया, अब CO2 मस्त फ्लो हो रहा है, कुछ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, और कुछ क्या 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। समझे? तो अभी की सिचुएशन के अनुसार अगर मैं ये ब्लड वेसल बनाऊं, तो आरबीसी के अंदर क्या है? आरबीसी के अंदर क्या है? अच्छे से नहीं बन रहा। आरबीसी के अंदर आपका कार्बामिनो हीमोग्लोबिन है। समझ रहे हो? एंड यहाँ पे क्या मूव कर रहा है आपका? Na प्लस SCO3 माइनस, है ना? मूव कर रहा है। ये जो ब्लड है, सोच के बताना, ये जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है? इसके पास पूरा कार्बन डाइऑक्साइड भरा पड़ा है। बोलो, ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड है? सोच के बोलना जल्दी से। सोचोगे तभी बोलोगे, ऐसे नहीं बोलना। डीऑक्सीजनेटेड है, क्योंकि टिश्यू ने इसको कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, टिश्यू से यह कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, टिश्यू वाली साइड से कार्बन डाइऑक्साइड ले चुका है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन चुका है। अब ये कहाँ जाएगा बताओ? कहाँ जाएगा ये? किसके पास जाएगा ये? एल्वियोलाई के पास जाएगा। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिल के पास जाएगा, पहले हार्ट के पास जाएगा, और हार्ट इसको कहाँ लेके जाएगा? लंग्स के पास। सोच रहे हो क्या मैं जो बोल रही हूँ? ये पहले हार्ट को लेके जाएगा, और हार्ट से लंग्स के पास लेके जाएगा। जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब बताओ,
सारा खेल पार्शियल प्रेशर का है यहाँ पे, सारा खेल पार्शियल प्रेशर का है, इसीलिए मैंने फर्स्ट डे पढ़ाया था उसको। जैसे ही वो एल्वियोलाई के पास आता है, जैसे ही वो एल्वियोलाई के पास आता है, चलो बताओ तो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होता है बताओ। अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होता है बताओ, क्या होता है? 40, 40 mmHg। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होता है बताओ, 45 होता है, राइट? गलत है तो बता देना, हाँ एक बार, हो सकता है डेटा मैं भूल जाती हूँ। 45 mmHg। एल्वियोलाई का बताओ तो क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, जल्दी जल्दी बताओ तो। 104 है। एंड CO2 क्या है, जल्दी बताओ। CO2 क्या है, 40 है। अब जल्दी से देखो क्या होने वाला है यहाँ पे। जैसे ही यहाँ ये पहुंचा, जैसे ही ये ब्लड वेसल यहाँ ब्लड लेकर आया, जैसे ही ब्लड यहाँ तक पहुंचा, जैसे ही ये वाला आरबीसी यहाँ तक पहुंच गया और ये वाला बाइकार्बोनेट यहाँ पहुंच गया, इसको प्रॉब्लम होने लगी। इसको क्या होने लगी, प्रॉब्लम होने लगी। ठीक है रोहित, एक बार मेरे को समझा लेने दो, फिर अनम्यूट भी कर दूंगी सबको। हाँ, इसको प्रॉब्लम होने लगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा मिल चुका है। और रिमेंबर, एक कंडीशन बोला था अभी मैंने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा है तो क्या होगा, देखो 40 एंड 104, डिफरेंस समझ आ रहा है? ऑक्सीजन यहाँ आना शुरू कर देगा, और जैसे ही ऑक्सीजन आएगा बोलेगा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड निकल ले, तेरा टाइम आ चुका है। क्या होगा, यहाँ यहाँ 45 था, यहाँ 40 था, इसको इधर भेज देगा कार्बन डाइऑक्साइड को। फिर से समझा रही हूँ, जैसे ही एल्वियोलाई के साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा हुआ, यहाँ कम था, तो O2 क्या हुआ, O2 अंदर आने लगा। क्या अंदर आने लगा, ऑक्सीजन अंदर आने लगा। जैसे ही ऑक्सीजन अंदर आएगा, धीरे धीरे ब्लड क्या बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। धीरे धीरे ब्लड क्या बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। मतलब ऑक्सीजनेटेड का मतलब अब ब्लड को, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बाइंड करना होगा। अब आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन है उसको किससे बाइंड करना पड़ेगा, ऑक्सीजन से। क्यों? क्योंकि पार्शियल प्रेशर किसकी तरफ जा रहा है, पार्शियल प्रेशर पॉजिटिव होगा, 96 mmHg हो जाएगा। समझ रहे हो मैं जो बोल रही हूँ? जब ऑक्सीजन यहाँ आएगा तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड धीरे धीरे ऑक्सीजनेटेड होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 96 mmHg होने लगेगा। इसका मतलब ये होगा कि अब हीमोग्लोबिन को कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई को देना पड़ेगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा हो चुका है। तो क्या होगा, प्रोसेस यहाँ रिवर्स होगा सब कुछ। अब देखो क्या होगा। अभी मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, आप लोगों का डाउट, आप जो भी बोल रहे हो मुझे ये समझाने दो, उसके बाद आपको जो बोलना है बोलना। ठीक है, अब ये कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन ज्यादा ऑक्सीजन होने की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन आके झगड़ा करेगा, ए हीमोग्लोबिन को मुझे दो, हीमोग्लोबिन को मुझे दो, हम हो चुके हैं ऑक्सीजनेटेड, मेरे को चाहिए हीमोग्लोबिन। तो बेचारा हीमोग्लोबिन बोलेगा ठीक है भाई, मैं तेरे साथ ही आ जाता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता हूँ। तो क्या होगा, यहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड फ्री हो गया और हीमोग्लोबिन भी फ्री हो गया। ये हीमोग्लोबिन किससे बाइंड करेगा, ऑक्सीजन से, बन जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बन जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दूसरा स्टेप, ये तो पहला स्टेप हो गया, ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड आराम से एल्वियोलाई में चला गया, आराम से एल्वियोलाई में चला गया। दूसरा, Na+SCO3- क्या होगा, वापस आएगा आरबीसी में। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बढ़ चुका है, SCO3- कहाँ जाएगा? अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं एक और डायग्राम यहाँ बनाती हूँ, क्लियर क्लियर समझ आएगा उसमें। यहाँ पे SCO3- है, यहाँ पे आपका आरबीसी है।
ये अंदर जाएगा, अंदर गया, अब क्या होगा, H+ से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, अंदर में H+ था ना, H2CO3, H2CO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में, H2CO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में H2O बनाएगा, प्लस CO2 बनाएगा, और ये CO2 फिर से कहाँ चला जाएगा, एल्वियोलाई में, और फाइनली आपका ब्लड बन जाएगा ऑक्सीजनेटेड। एक और बात, जब यहां से SCO3- अंदर गया, नेगेटिव अंदर जा रहे हैं ना, क्या बोलेगा ये, भाई तू तो आ गया तो मेरे को अब क्लोराइड की कोई जरूरत नहीं है, ले जा। तो क्लोराइड को वापस भेज देगा, क्लोराइड को वापस भेज देगा। इसको बोलते हैं, उसको बोलते थे पॉजिटिव क्लोराइड शिफ्ट, इसको बोलते हैं नेगेटिव क्लोराइड शिफ्ट, क्योंकि वो जा रहा है, देयर इज अ लॉस। ये है आपका नेगेटिव क्लोराइड शिफ्ट, नेगेटिव क्लोराइड शिफ्ट, गॉट इट। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड से आपको मुक्ति मिल गई, और हीमोग्लोबिन आपका फ्री हो चुका है, हीमोग्लोबिन कार्बामिनो हीमोग्लोबिन में फ्री हो चुका है, हीमोग्लोबिन मस्त ऑक्सीजन बाइंड करेगा, फ्लो करेगा, फिर जाएगा टिश्यू के पास। फिर टिश्यू के पास क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और ऑक्सीजन टिश्यू को मिल जाएगा, समझे। तो ये है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इसको भी हैमबर्गर इफेक्ट बोलते हैं, यस नुमान, इसको भी हैमबर्गर इफेक्ट बोलते हैं, नेगेटिव क्लोराइड शिफ्ट को भी हैमबर्गर बोलोगे। एक और इफेक्ट बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो चीज हो रही है ना, यहाँ पे जो चीज हो रही है ना, जब ऑक्सीजन की एंट्री होती है, वाइल्ड कार्ड एंट्री, जब ऑक्सीजन की एंट्री होती है तो क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आ गया, एल्वियोलाई को चला गया, ये हीमोग्लोबिन फ्री हो गया किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। ये हीमोग्लोबिन किसके लिए फ्री हो गया, ऑक्सीजन के लिए, ताकि वो ऑक्सीजन से बाइंड कर सके, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 धीरे धीरे बढ़ रहा था, 96 mm ऑफ Hg की तरफ जा रहा था। इस इफेक्ट को, ऑक्सीजन की आने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन को छोड़ने की प्रोसेस को बोलते हैं हैल्डेन इफेक्ट। ये वाला जो इफेक्ट है ना, ये वाला, ये वाला, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन को छोड़ रहा है, या हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहा है, इस इफेक्ट को बोलते हैं हैल्डेन इफेक्ट। जब O2 की वजह से, जब O2 की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन का रिश्ता टूट रहा है, उसको बोलते हैं हैल्डेन इफेक्ट। चलो, यही है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, समझ रहे हो कुछ। इसी में अगर ऑक्सीजन को मैच करना है तो ऑक्सीजन भी इंक्लूड कर लो, इसी में अगर ऑक्सीजन इंक्लूड करना है तो कर लो। यहाँ का पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 45 था, यहाँ का पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 था। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, है ना, क्योंकि इसमें CO2 गया था। अगर मेरा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो चुका है, अगर मेरा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो चुका है, आराम से पढ़ना, अगर मेरा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो चुका है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है, तो आपको पता है यहाँ का पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 96 है ना, और यहाँ का पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 40 है शायद, है ना, कल ही तो सीखा था हमने। तो क्या होगा, आराम से O2 यहाँ आएगा, O2 यहाँ आएगा, O2 यूज हो जाएगा, यहाँ से CO2 जाएगा, जैसे ही CO2 जाएगा ये फिर से बन जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है क्या होने वाला है, उसके बाद की पूरी कहानी यही है, CO2 जाएगा, कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन बनाएगा, पूरा प्रोसेस वही चलेगा, एंड इट विल कीप हैपनिंग।
चलो एक बार फिर से देख लो। हम देख रहे थे यहाँ पे कैसे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना। कार्बन डाइऑक्साइड गया, हीमोग्लोबिन से बाइंड हुआ कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन, एंड देन वाटर से कंबाइन होगा, बाइकार्बोनेट बनाएगा। वो बाइकार्बोनेट आपका प्लाज्मा में आएगा, आराम से Na+K+ के साथ मिलके ट्रांसपोर्ट होता जाएगा। ट्रांसपोर्ट होते होते जब एल्वियोलाई पहुंचेगा, वहां पे पाया जाएगा कि वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के कंपैरिजन में। तो ऑक्सीजन आने लगा, ऑक्सीजन अंदर आने लगा। ऑक्सीजन के अंदर आने से क्या हुआ, ये हीमोग्लोबिन को कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करना पड़ा, सैक्रिफाइस करना पड़ा। और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे पार्शियल प्रेशर 40 है, यहाँ पे 45 है, तो आराम से कार्बन डाइऑक्साइड भी चला गया। ये जो है वो हैल्डेन इफेक्ट है, ठीक है। फिर बाइकार्बोनेट वापस आता है आरबीसी में, फिर से H+ से कंबाइन करेगा, H2CO3 बनाएगा, फिर से H2O और CO2 बनेगा, ये CO2 को बाहर भेज दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब कार्बोनेट आता है तो Cl को वापस भेजते हैं, नेगेटिव क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर इफेक्ट। यहाँ पे जब क्लोराइड अंदर आया था, पॉजिटिव क्लोराइड इफेक्ट या फिर हैमबर्गर इफेक्ट, ठीक है। यही है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब बताओ क्या डाउट है, जो डाउट है बताओ, अदरवाइज वी विल, आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू ऑन काहूट। हम काहूट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज, जल्दी बताओ कुछ डाउट है तो। हैज एवरीवन अंडरस्टूड? प्लीज क्लिक ऑन यस। देखो जो मैंने पढ़ाया अभी वो समझने के लिए था। एट मैक्स आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हैमबर्गर इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, हैल्डेन इफेक्ट क्या होता है, वो पूरा मैकेनिज्म कभी नहीं पूछते हैं, ठीक है। मैंने जो आपको ये वाला पेज दिखाया था ना, एग्जाम में क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, ठीक है, ओके। किसके पास ज्यादा CO2 हो जाएगा विराल? एल्वियोलाई के पास, तो एल्वियोलाई से बाहर फेंको ना, ब्रीद आउट करो। एल्वियोलाई को CO2 दे रहे हो तो एल्वियोलाई जमा थोड़ी रख रहा है उसको, एल्वियोलाई तो ब्रीद आउट कर रहा है उसको, है ना। While it convert oxygenated and deoxygenated blood, उसके पास तो CO2 ज्यादा हो जाएगा। किसके पास CO2 ज्यादा होगा तभी तो CO2 को एल्वियोलाई को देगा वो, और एल्वियोलाई से बाहर जाएगा, है ना। चलो लेट्स डू सम क्वेश्चंस। आ जाओ kahoot.it पे, जल्दी से आ जाओ। kahoot.it आ गए? kahoot.it kahoot.it डजंट मैटर खुशी, अब तो मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, अब तो कुछ बोलना ही नहीं है मुझे। चलो आपको स्क्रीन देखना है एंड काम करना है, यू नीड टू सी द स्क्रीन, enter the game pin and then start playing, okay. The game pin is 169490. Vaishnavi, Anushka, they have joined. Numan has joined. Who is Dangi? Dangi. Aviral. अच्छा अच्छा, it is Aviral. ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या सीखेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, हम उसको कैसे रेगुलेट करते हैं, कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स सीखेंगे,
हमारे में तो लंग्स है ऑब्वियसली, बट दूसरे दूसरे एनिमल्स में क्या होता है वो सीखेंगे, एंड कुछ डिसऑर्डर्स सीखेंगे। बस हमने पूरा मेजर पार्ट डिस्कस कर लिया है रिस्पिरेशन का। हाँ सृष्टि, जैसे कि गिल्स वगैरह होते हैं ना, वो सब। तो आई कैन सी ओनली 9 स्टूडेंट्स हु हैव ज्वाइंड। बाकियों को कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे को मैसेज कर दो, नेटवर्क इश्यूज, कुछ भी इशू है मेरे को मैसेज कर दो बस, ताकि मैं स्टार्ट कर सकूं गेम को। आई कैन सी 9 स्टूडेंट्स ओवर हियर। मानसी है, खुशी है, अविराल है, नुमान है, रोहित नहीं है यहाँ पे, साक्षी, वैष्णवी, सृष्टि, आकांक्षा, अनुष्का है। वेबसाइट लोड ही नहीं हो रही। दिस इज द रीजन प्रियांशी, इसीलिए मैं काहूट नहीं करती, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। दैट इज द रीजन व्हाई आई डोंट गो फॉर इट। चलो, आई विल स्टार्ट देन। आप क्वेश्चन देखो एंड चैट पे आंसर कर दो, ठीक है? क्वेश्चन देखो एंड चैट पे आंसर करो। आई एम सीइंग योर आंसर्स। साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स आर। लंग्स में साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज क्या है? ओके, दैट्स नाइस। बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, इतना इजी है। आपको पता है ना, आपको जूम वाले स्क्रीन पे ऑप्शंस दिखेंगे एंड आपको काहूट वाले पेज पे वापस आना है। आंसर, ओ वाओ, वाओ वाओ, अरे ये गलत है। ओ माय गॉड, दिस इज रॉन्ग ना, ऑप्शन इज रॉन्ग। पहली बार ऐसा हुआ है। इट शुड बी एल्वियोलाई, राइट? सब के सब गलत हो, सब के सब गलत, जीरो सही। आंसर एल्वियोलाई होना चाहिए, राइट? देयर इज अ मिस्टेक आई गेस। आंसर शुड बी व्हाट? एल्वियोलाई। आप सबने सही किया है, आप सबने सही किया है। देखते हैं, सबको 0 0 पॉइंट्स अवार्ड हो चुके हैं। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following are functions of conducting part of the respiratory system? Conducting part of the respiratory system, उसका फंक्शन क्या है बताओ? Removal of foreign particles, humidify the air, bring the temperature of incoming air to body temperature, all of the above. Done? ओके, दैट इज वेरी नाइस। सिर्फ एक बच्चा गलत किया है। ये तीनों ही करता है, ठीक है? रिमूवल ऑफ फॉरेन पार्टिकल भी करता है, एयर को ह्यूमिडिफाई भी करता है, और बॉडी टेम्परेचर में लाता है एयर को, ठीक है? सोनुमान, साक्षी, सृष्टि, मानसी एंड खुशी, लेट्स गो अहेड एंड सी। इंस्पिरेशन के समय डायफ्रागम क्या होता है? देखो ऑप्शंस को। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन व्हाट हैपेंस टू डायफ्रागम? बहुत इजी क्वेश्चन है, सब तो 10 बार 15 बार रिवाइज किया हमने। सभी क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, ठीक है? आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन बैंक। डिसऑर्डर्स वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा मे बी, और रेगुलेशन वाला नहीं बनेगा, बाकी सब बन जाना चाहिए। क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो। कल क्लास नहीं है, परसों क्लास नहीं है। भाई साहब, ये तो खतरनाक आंसर दिया है आप लोगों ने। जब इंस्पिरेशन होता है, जब आई एम हैप्पी कि 4 लोगों ने कम से कम सही किया है, तो डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट करता है, राइट? और फ्लैट हो जाता है वो। कैसे गलत किया ये? हम्म, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और फ्लैट होगा। हाँ वैष्णवी, सही बोल रहे हो, लेकिन वही बात है, मैंने कितनी बार तो बोला था क्लास में पढ़ाने के समय कि एनसीईआरटी में आपका फ्रेनिक मसल्स का कहीं भी नाम नहीं है। हर जगह उन्होंने यही बोला है कि डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट्स।
है ना? अगर एनसीईआरटी पढ़ा होगा, मेरी आवाजें सुनी होंगी उस समय, तो समझा होगा ये क्वेश्चन। मैंने बोला था ना, एनसीईआरटी में सिर्फ डायफ्रागम यूज करा गया है, फ्रेनिक को कहीं भी यूज नहीं किया उन्होंने। डायरेक्ट डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डायफ्रागम रिलैक्स ऐसा लिखा है। ओके, सो नुमान इज ऑन टॉप, वैष्णवी इज फॉलोइंग हिम, Mansi on third, Chiranjeev on fourth, and Sakshi is on fifth. In alveoli air, partial pressure of CO2 क्या होता है? अभी अभी सीखा हमने। alveoli में partial pressure of CO2, देखो इमेज को अच्छे से देखो, कितना सुंदर है। देखो आरबीसी डब्ल्यूबीसी फ्लो हो रहा है, कैसे एक्सचेंज हो रहा है, सब कुछ जो बटन के जैसा दिख रहा है ना, वो सारे सेल्स है आपके। डन ना डन? जल्दी जल्दी करने का। चलो, सिर्फ एक ने गलत किया है, कोई बात नहीं। 40 mm होता है ना एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड में 45 होता है, एल्वियोलाई में तो कम ही होना पड़ेगा। हु इज ऑन टॉप? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ऑल द गर्ल्स आर फॉलोइंग द बॉय। ओके, हमारे किशन कन्हैया जी हैं ये। द टोटल परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन और आरबीसी इज, देख रहे हो हीमोग्लोबिन या आरबीसी लिखा है ना? तो जब आरबीसी बोले आपको समझ जाना है, वो हीमोग्लोबिन ही होगा। बताओ क्या परसेंटेज है? जल्दी 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 जल्दी। ओके, नो वन, किसी ने गलत आंसर नहीं किया, बट बहुत कम लोगों ने आंसर किया। 97% है ना? ये तो सीखा है सबने। एंड नाउ एक और बॉय हमारे डेटा में जुड़ चुके हैं, चिरंजीव ऑन सेकेंड। दैट इज नाइस। आगे बढ़ते हुए, मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, बताओ। हाँ क्या विराल, वो तो पॉसिबल नहीं है कि गलत दिखाएगा वो, पता नहीं कैसे दिखाया गलत, कुछ ग्लिचेस होंगे मे बी टेक्नोलॉजिकल। कोई बात नहीं अविराल, कोई बात नहीं, चलता है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ काहूट, समझ आया ना? क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ ग्लिचेस है इसमें। सब लोगों ने आंसर कर दिया है, स्किप कर देती हूँ। 6 लोगों ने करेक्ट करा है। अभी बताया था ना, सबसे ज्यादा किसके फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड जाता है बच्चा पार्टी? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, है ना? गलतियां मत करो। Okay, so we have the same data repeating again and again. Go for the next one. हर एक मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है? सोचो और बताओ। ये गलत किया ना तो बहुत पीटूंगी, बहुत। किसी को गलत नहीं करना है इसको। जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? 8 लोगों ने आंसर किया, 9 लोगों ने किया, जल्दी जल्दी। जो लोग नहीं कर रहे हैं काहूट में आंसर, मेरे को चैट पे आंसर कर दो, आई कैन सी योर आंसर्स। ठीक है? आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट। मुझे मतलब नहीं है काहूट में करो या कैसे भी करो, मैं बस ये चाहती हूँ कि आपको जानना है आंसर्स उसके। अगर आप काहूट पे नहीं कर पा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैट पे आंसर कर दो उसका। ठीक है? तो 9 लोगों ने सही किया है। एक हीमोग्लोबिन, 2 ऑक्सीजन, सॉरी, 2 लोगों ने गलत किया, तो मेरे दिमाग में वही चल रहा है। हाँ, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा, है ना? OMG, and the data, प्रियांशी हैज कम राइट, आई थिंक 5th पोजीशन पे, बाकी तो सब सेम ही है, राइट? देखते हैं आगे क्या होता है। जो ब्लड लंग्स में जाता है, दैट इज रिच इन ब्लड एंटरिंग द लंग, मतलब जो ब्लड की तरफ जा रहा है,
समझो, ब्लड जो लंग्स की तरफ गया, ब्लड एंटरिंग द लंग, जो लंग की तरफ जाएगा उसके पास कैसा खून होगा? ऑक्सीजनेटेड होगा या डीऑक्सीजनेटेड होगा? सोचो, डीऑक्सीजनेटेड होगा ना। टिश्यू से टिश्यू से जो ब्लड जाता है वो लंग्स की तरफ जाता है, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है ना, तो वो वाला आपका लंग्स की तरफ जाएगा, एंटर करेगा। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ऑक्सीजन ले लेता है वो लंग्स से दूर जाता है, टिश्यू की तरफ, राइट? Oh, now we have some changes. Numan is on top, Akansha is on second, Vaishnavi on third, followed by Priyanshi and Mansi. कौन सा एंजाइम है जो रिएक्शन रेट को बढ़ा देता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को जोड़ने में? बताओ जल्दी। जैसे ही 10 लोगों का आंसर हो जाएगा मैं स्किप कर दूंगी। 8 ही लोग कर रहे हो क्या आंसर? बहुत इजी है यार, इतना टाइम थोड़ी लगेगा। आई एम स्किपिंग। 9 लोग ही थे ना? हाँ, ठीक है। तो सबने सही किया है एक्सेप्ट एक। कार्बोनिक एनहाइड्रेस है। चलो, विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या होता है। कितना परसेंटेज ऑफ CO2 प्लाज्मा में डिसॉल्व होके जाता है? ये क्वेश्चन ध्यान से करो। कितना परसेंटेज ऑफ CO2 प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेट में जाता है? ये अगर पहला वाला स्लाइड याद होगा ना, पहला दूसरा जो भी मैंने दिखाया था, जिसमें CO2 और O2 को साथ में दिखाया था, कितना कितना ट्रांसपोर्ट होता है, वो अगर याद है तो कर लोगे। 7% होता है ना, 20 to 25 कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन, 70% आपका बाइकार्बोनेट, एंड 7% होता है डिसॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा, है ना? देखते हैं। आई नो हु इज द विनर, वी ऑल नो हु इज द विनर। Chiranjeev is on third position, very very nice. Akansha is on second, and it's no one but Numan, right? Yes. So Numan is on top, Mansi is on fourth, and Sakshi is on 5. So these are our top 5 today. Okay, congratulations, celebrations. ठीक है, तो इसी के साथ हम क्लास को एंड करेंगे। थैंक यू सो मच। कल इंडिपेंडेंस डे है, अच्छे से सेलिब्रेट करो, राइट? रिलैक्स करो, चीजों को रिकॉल करो जो पढ़ाई जा चुकी है आपको, एंड स्टे सेफ। मन करे तो 10 मिनट के लिए पढ़ लेना इंडिपेंडेंस डे के ऊपर, है ना, कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने क्या किया था। यस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल इन एडवांस। रुको, मैं ये कर देती हूँ वो म्यूट वाला चीज हटाती हूँ। You all can, unmute yourself and then speak whatever you want. Independence Day in advance. Yes. Happy Independence Day to all of you. Enjoy well. ठीक है? All right, I'm ending the recording now. Thank you so much.